أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ سلسلہ وار درس قرآن کو ہم 28واں سپارہ سورہ طلاق تک پہنچے تھے، آیت نمبر 1 تک ہوا تھا، آج آیت نمبر 1 سے آگے ہے۔ مضمون کا چلان خاص شو علمی اخ مضمون کوشش کرو سادہ الفاظ میں سمجھانے طلاق کو چلان کہ آیا جب تمہیں اللہ بچائے کبھی ازدواجی زندگی میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے حقوق پامال ہونے لگے تو پھر تم طلاق کا سہارا لے لو، ہے نا۔ شریعت چوائس ہر اخ چیز زندگیوں طور طریق نشیب و فراز اتار چڑھاؤ سورے ہیچناوان ضرورت چھو اوکن خیال تو زون دن خیال کرنو، پھر جا کے سب کچھ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے دین کے ذریعے سے سکھایا ہے، اور ہے بھی ہے کیوں نہ ہو، کیونکہ دین اسلام کامل اور اکمل مذہب ہے، تمام مذاہب کا سردار ہے۔ تو طلاق کت کن دیو توئی اگر توئی تمہیں ضرورت پیے۔ ہاں پچھلی دفعہ یہ آیا تھا مضمون کہ اگر طلاق تم دینے کی نوبت آ ہی گئی، بہت کوشش کرنی ہے بچنے کی کہ بگس نہ طلاق دیو، ہاں گوڑ اسی چنگمک پر تم طلاق کھوان معمولی گو نون علاوہ کیسا گو معمولی گھر اور بس نہیں، ایسی بات بہت کوشش کی۔ مرد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے قوی بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، حاکم بنایا ہے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں۔ عورت مردوں کو، مرد آسان شیر کی طرح ہوتا ہے، اور عورتیں ناقص ہوتی ہے، صنف نازک ہوتا ہے نا، بلکہ کتابوں میں آیا ناقص العقل ہے نا، بتایا گیا ہے ان کو، ہے نا کہ شریعت نے ایک سی زائیں ہن گواہی چھن شریعت مہمز اد یل زائیں آسن تو اخ مرد آئے، زائیں آسن تو اخ مرد آئے، کیوں؟ یہ ذرا جذباتی ہوتی ہے نا، کم فہم ہوتی ہے، اس کی رعایت رکھتے ہوئے یہ تو کریم، یہ تو ویسے بھی ٹیڑھی پسلی سے اس کو بنایا گیا ہے نا، کہ آیا نا کتابوں میں کہ یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے، اس کو سیدھے کرنے کی کوشش کرو گی تو ٹوٹ جائے گی، چھنز لڑکے اس مثال ہے لڑکے نا لڑکے آسان یہ قدرتی حج آسان ادھر کا میں کیا حج لڑکے مگر گھن سود آسن سٹریٹ اد لگ تو کریں ٹھیک چھا تیل عمر بہن بیڈس پہ یہ سیدھی نہیں ہوں گی۔ تو مثال دی گئی ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے ان عورتوں کو، یہ ان کو ایسے ہی فائدہ اٹھاؤ، ہے نا۔ ایک شریک حیات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو خلقت انسانیت ہے دونوں مرد و زن سے اللہ نے اس نوع انسانی کی بقا رکھی ہے، چھنز تو لہذا یہ جذباتی ہوتی ہے، کم فہم ہوتی ہے، تو ان کو ایسے ہی اور برداشت مرد ہونا چاہیے۔ اس کے ذہن سے استحضار آسن بچھوس مرد، بچھوس الٹا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں وہ عورت ہے میں مرد ہوں مجھے مرد کی طرح رہنا چاہیے، اور اپنے اندر وہ ایک سمندر پیدا کرے، برداشت کا ایک سمندر بنائے، ٹھیک ہے۔ کوشر پر ونچ گھس پہاڑ بناؤن، ونچ گھس پھر جا کے زندگی میں ایشو ضروری بھائی یہ دنیا ہے، یہ کوئی جنت نہیں ہے کہ حور کی طرح وہ مجھے رہے یتکن استھا کرو، نہیں، یہ دنیا ہے، یہاں مقدر کی خوشیاں بھی ملیں گی اور مقدر کے غم بھی ملیں گے۔ یہ دنیا کی ایک ریت ہے، یہ قانون خداوندی ہے، یہ دونوں اپنی اپنی مقدر اور اپنے حصے کا غم بھی ملے گا، اپنے حصے کی خوشی بھی ملے گی۔ غم تو ایک ہی جگہ ہے، وہ تو ہے جہنم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خوشی ہے صرف جنت میں، وہاں غم کا کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں۔ تو رہا پھر دنیا، یہاں بین یا دونوں چیزیں، یہاں غم بھی مقدر کا ملے گا اور خوشی بھی مقدر کی۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ بس میں خوشی میج میں آز تامت اور میلنم تگسن، ایسا ممکن یا کوئی یہ کہے کہ میں وشت خوشی مجھے صرف غم ہی ملے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اپنے مقدر اور اپنے حصے کی دونوں چیزوں سے واسطہ پڑے گا۔
تو बिलफर्ज मुहाल आपको तलाक देनी ही पड़ी। अब लास्ट स्टेज हो गई है, हुकूक पामाल होने लगे, है ना, शरीयत की जो हदूद हैं, वो बाउंड्रीज हैं, वो पार होने लगे, अब तलाक दे दो, अब तलाक दे दो, क्योंकि अब हुकूक ज़ाया होने लगे। अब आखिरत कमाने के बजाय मेरी आखिरत ज़ाया होने लगेगी दोनों तरफ से। तो जब तुम तलाक दे दो तो लेकिन दे दो तलाक रजीई, तलाक बारे किस्म तवे कर वो इस थोड़ा इल्मी मजमून, तलाक आगो तलाक के बायन, आगो तलाक रजीई, ठीक है, पचासा इशारा वाला तलाक है, सरीह तलाक में वो। तो जो मोटे मोटे हैं वो एक होता है तलाक बाइन जो ना कि इस खानदानी तलाक बाइन दे वो फौरन जुदा हो जाती है, उसके बाद अगर फिर मिलना चाहें तो निकाह करना पड़ता है। एक और किस्म है तलाक रजीई, तलाक जब हाँ तो यह उसी की तालीम दी जाती, वही तो जरूरत पे तो तलाक रजीई गोश्तुन, तलाक रजीई गोश्तुन। तलाक रजीई किसे कहते हैं कि तुमने नियत की कि यानी कि जैसे कि बिलफर्ज माल अपने औरत के मैं में से तलाक रजीई ठीक है। अब इसकी इद्दत होती है 3 पीरियड्स या 3 तोहर कहेंगे या 3 महीने कहेंगे, पीरियडों का ही हिसाब किया जाता है जो हमारे माँ बहन को कुदरती तौर पर अल्लाह ने रखा है। जो जब 3 पीरियड्स हो जाएं अगर तो एम तलाक रुजू कोर अमन से बे बोसु सला सफाई गई तेल पे निकाह करने जरूरत। मिसाल के तौर पर अभी इसके 2 महीने यानी कि 2 पीरियड गुजर गए थे, अभी 1 पीरियड बाकी था, इसने सुलह सफाई के लिए वो काचे रोया बिहोन लड़ाई करनी वो सुन बलाई सिरसी तो हो गए बहाल, अब निकाह करने की जरूरत। अगर ये तीसरा वाला पीरियड भी गुजर गया अब ये तलाक बाइन बन जाएगी, तलाक रजीई ही क्या बन जाएगी, तलाक। अब अगर फिर में मिलना चाहे है ना तो फिर क्या कहेंगे, हम बड़ी देर कर दी भाई, अब तो निकाह पढ़ना पड़ेगा, अब निकाह पढ़ना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब क्यों अल्लाह ने ये करे कि अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं, भाई अल्लाह ने इस बंदे को बनाया है नुकसान, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबीद, अल्लाह अपने बंदे से जुल्म नहीं चाहता है, ज़्यादती नहीं करता है। तो अल्लाह फरमाते हैं क्यों मैंने आपको बताया कि तुम अगर देना भी चाहो तो तलाक रहे, लअल्लाह ला तदरी लअल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, मुमकिन है इस लड़ाई झगड़े के बाद कोई नरम बात एक दूसरे के दिल में पैदा हो जाए, सुलह सफाई की बात पैदा हो जाए। तो मकसद तो मिलना है भाई, तोड़ना मकसद नहीं है। अब वक्ती तौर कुछ नाचाकियाँ होती है, उस वजह से थोड़ा सा जुदा होना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी तरतीब शरीयत ने सिखाई। तो तुम कौन सी तलाक दे दो, तलाक रजीई दे दो, और फिर 3 तोहर तक 3 पीरियड्स तक इंतजार करो, ये 3 के मुकम्मल होने से पहले तक, ताकि थोड़ा सजा लगे एमिस है ना, थोड़ा सा दिमाग भी ठिकाने आ जाए, हेमिस लग सजा एमिस लग सजा ना वो ना पाइज न कीनते। अभी इद्दत पूरी मुकम्मल होने न पाई हो या अभी मुकम्मल न हुई हो तो रजात कर लो, तो मसला खत्म, बहाल हो गई, निकाह करने की जरूरत। सुभान अल्लाह, क्या शरीयत है, क्या कुरान है। तो वही कहते हैं आगे जब तुम तलाक दे चुको तो कौन सी तलाक दे दो, तलाक रजीई। फिर कुरान आगे कहता है, आज जो आगे सबक है, फइज़ा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब वो अपनी इद्दत को पहुंचने के करीब हो, अपनी इद्दत को पहुंचने के यानी कि 3 पीरियड्स है ना, यानी कि समझाने में के लिए कह रहा हूँ 3 महीने बिलफर्ज महल रेत गई पात को नहीं मिल गई, 2 पीरियड्स पीछे चले गए, अब कितना रह गया, 1 पीरियड। अब सोचना है कि भाई हाँ अगर मैंने अभी खामोशी इख्तियार कर ली, छुन रालन की थे, फिर इंतजार करे तीसरा पीरियड भी आ जाए, फिर तुहुर में पाकी में चली जाए हमारी माँ बहन, फिर ये जुदा हो जाएंगे, फिर ये रजत वर्जत से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कहते हैं कि फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, जब ये अपनी इद्दत के पहुंचने को खत्म होने के करीब पहुंच जाए फिर तुम फैसला करो अपनी जगह, फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ, अगर तुम रखना चाहो तो अच्छाई के साथ, मगलोई सुपरून सोरी सला सफाई कर लो और इसको अच्छाई के साथ रख। फ़अम्सिकूहुन्ना, उनको तुम रुकाओ अपने पास, यानी पनी खानदानी बनाई थोयून कित कन, मगर जिद छन करें, बिमारूफ अच्छाई के साथ, है ना, अखलाक के साथ करो। रफा दफा है, पाकुनी गए वलसा हो गए रजात तो हो गई बहाल, फिर से ये तो फिर से मियाँ बीवी बन जाएंगे। तो वही कुरान कहता है
फमसिकुहुन्ना बिमारूफ। अब तुम फैसला, अगर तुम रुकाना चाहो तो अच्छाई के साथ रखो। वो कैसे सो प्रून बे दोहराउन वन करा हु वन करा यू, उसको बस पानी फेर दो, सला सफाई हो गई, अच्छाई दूसरे कदम से जिंदगी की और एक शुरुआत कर लो। फमसिकुहुन्ना बिमारूफ, तो फिर तुम अगर उनको रखना चाहो तो अच्छाई के साथ रखो, अल्लाह बचाए। अब फारिकुहुन्ना, अगर तुम छोड़ना ही चाह रहे हो, है ना, जुदा करने ही चाह रहे हो, लेकिन बेमारूफ अच्छाई के साथ, तब पज जुल्म तो ज्यादती करें भाई, अब मौका है वल बहावस वन तो चलने। कुरान कह रहा है कि अगर तुम रखना चाहो तो बेमारूफ अच्छाई के साथ रखो। औ फारिकुहुन्ना, अगर वो तो रवाना ही करें, रुखसत ही करें, तो बेमारूफ अच्छाई के साथ, अखलाक के साथ। महर अदा न किया हो फौरन अदा करो, है ना, अगर अदा भी किया हो कुछ हदिया तहाइफ देकर दे जाओ भाई, अल्लाह के हवाले रख सके मैं इन तरफ, ठीक है, बड़ी अच्छाई के साथ अखलाक के साथ। जुदा हो गई वो अपने आप को, तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो, ऐसी कोई पाबंदियां, लेकिन कुरान ने कहा साथ साथ में रखो भी अच्छाई के साथ, जुदा भी करो अच्छाई के साथ। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं कि और जब तुम ये काम करो, चाहे रखो चाहे तुम उसको रुखसत करो, वअशहिदू दवई आदलिम मिनकुम, तुम दो मुअतबर शख्सों को इस पर गवाह बनाओ। दो मुअतबर शख्सों को इस पर क्या बनाओ? गवाह बनाओ। यही हम थोड़ा सा चूक खाते हैं दुनियावी मामला, जो लेन देन वगैरह है, मसला ऐसा हाल है इसको पन नाफर, इस घरुक मामला करते करते फिर लड़ाई और फसाद पर नौबत आ पहुंचती है। पत आसान एक ही माँ के बेटे होते हैं, हाँ, कभी कभार अपने सगे भाई होते हैं। वजह क्या है? शरीयत की इन पॉइंटों की उन्होंने पासदारी तवे गि लिखित गवन, गवाह गवन, है ना, चाहे दो भाई ही क्यों ना हो। भाई शरीयत दूर रख नजर आसान, शरीयत का मिजाज समझिए, यह पता यह इंसान, अमिस बदलनस देर लगान, अति सहल घरुक मसल कत लेखन यूत घरुक मसल कुनी त्रामे बत खेवान, लेकिन जब थोड़ी सी ऊंच शैतान ना पता है अमिस दुश्मन, बस हो गया मसला। भाई दो दस्तों गिरेबान होते हैं फिर, हाँ, पतन बोईज पतन क्लोज रिश्तेदार है। इसलिए कुरान ने कहा कि जब तुम ये फैसला करो, चाहे रखने का चाहे छोड़ने का, वअशहिदू दवई आदिल मिनकुम, दो मुअतबर शख्सों को इस वाक़े पर क्या बनाओ? गवाह बनाओ। क्या शरीयत है, सुभान अल्लाह। वाशिदू, गवाह बनाओ, दवई आदलिम, दो मोतबर शख्सों को, मिनकुम, जो तुम ही में से हो, है ना, जाना पहचाना थोड़ा मोतबर शख्स जी वकारी में आसान बुजुर्ग पान सामने लाओ, उनको गवाह बनाओ। देखो भाई हम फिर से जुड़ रहे हैं, हमने रजात की है, ऐसा गई बे बहाल है, हम साइदरी मजहब चाय सुबान ब्या गुजर वलस रोज से गवाह इस रले बे, हाँ, गया तलाक रजी इस रले बे रोज यह चीज कत पे गवाह, और एक तहरीर सी जरा बना लो, ताकि एक डिसिप्लिन सा रहता है, एक वो ज़ाब्ता से एक तहरीर रहता है। तो वाशिदू ज़वई आदिल मिनकुम, और तुम आपस में तुम मुअतबर दो शख्सों को इस बात पर क्या रखो? गवाह रखो, गवाह बनाओ। और फिर इन गवाहों को अल्लाह कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं लकरिन हिफाजत। देखो अदालतों का हाल नेबर कंच, सस्ते गवाह भी मिलते हैं, महंगे गवाह भी मिलते हैं, मीडियम गवाह भी मिलते हैं, और सीना ठोक के कह रहे हैं गवाही वलस कर जो कुन हिसाब है। ये हमारे माशरे का हाल है। कुरान से पता, शरीयत को पता था यीशु इंसान है ना, अमिस थोड़ा बहुत म्यूट के ये झूठी गवाही भी देगा, है ना। देखो हाल हमारे समाज का, अल्लाह की हिफाजत। ये क्यों चारों तरफ बेचैनी और बेसुकूनी है, कोई मंजिल ही दिखाई नहीं देती, अजीब परेशान हाल है रिश्तों के बारे में, मामलात के बारे में। वजह यही है ना, वजह यही है। इस लग में पनिस ईमान से कारोबार करान, अल्लाह करीन हिफाजत। तो इसलिए आगे अल्लाह कुरान और अल्लाह कह रहा है इन गवाहों से, वाक़ीमुश शहादत लिल्लाह, गवाह हो वहां बने तो गवाह तो है पड़ा करो बुरूस, वाक़ीमुश शहादा, ठीक गवाही देना, लिल्लाह, अल्लाह के वास्ते ठीक इना पगह हमसाय दारी मज हेर बुन क्या गई ओतन गवाह बनोमुत, पत गो मामूली हेर बन कह, पत क्यों बह कत जानन, बह कत गवाह, अदत गवाह तिस गर है, मैं ना पाई, है ना, मुकर जाता है। तो लिहाजा ए गवाह हो, तुम ठीक गवाही दिया करो, किस लिए? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह का खौफ रखो। आगे अल्लाह फरमाते हैं क्या जरूरत है हमें आपको ये सिखाने की,
हम इतना कह देते भाई तलाक ठीक ठीक दिया करो, इतनी तफसील करने की क्या जरूरत है। अल्लाह फरमाते हैं मोहब्बत ना इस बंदस से ज़ालिकुम युअदु बिही, लेकिन तब हर एक ना मानियो नहीं यम ज़ब्त तो कानून हर एक नहीं मानेगा, हर एक नहीं मानेगा। मानेगा कौन? ज़ालिकुम युअदु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। लबा ये जो आपको तफसीली मसाइल और ये ज़ाब्ते आपको बयान किए, ये हर एक शख्स का हर एक माने ना किए थे। ये जो वाक़या बयान किए, मसाइल जो तलाक का तज़किरा हुआ, युअज़ु बिही, इसके ज़रिए से तुमको नसीहत की जाती है, मगर हर एक इस खतर न उस शख्स के लिए मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, युस ईमान आस्थावान हजरत अल्लाह जल्ल और ईमान आस्थावान यौम आखिरतस पे, यमिस खुदा खौफ आसे, यमिस आखिर में वतनु क्या आसे, ईमान आसे, वही इन चीज़ों को मानेगा, वही इन चीज़ों को। लिहाजा मुझे झांकना गिरेबान में हो मे छा पास खुदा इस पे ना तिल पजम एमी मुताबिक पाकुन मे छा पास खुदा इस पे यौम आखिरत पे मे छु खुदा इस खड़ा गसन ना ठीक ठीक गवाहिया पजम दिन है ना। ज़ालिकुम युअदु बिही, ये जो इसके ज़रिए से जो मसाइल और ये ज़ाब्ते आपको बताए गए, युअज़ु बिही, इसके ज़रिए से तुमको नसीहत की जाती है, लेकिन वही मानेगा उसको नसीहत की जाती है मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो यकीन रखता हो अल्लाह और यौम आखिरत पर। ठीक है जी। आगे अल्लाह फरमाते हैं कोई बात नहीं, वक्ती तौर थोड़ा सा मुश्किल होगा, पोज पे वनुन गवाही पे दिन, अगर तुम्हें थोड़ा सा इसमें तकलीफ भी उठाने पड़ी, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह आगे फरमाए या ये बज पान वश कैसा कुर्क बर्दाश्त क्या दबोक अंदरी जुल्म ज्यादती, अगर कहीं गई बर्दाश्त किया फिर से बहाल हो गए, सोचा कि भाई अगर हम जुदाई करेंगे तो शैतान पीछे बेहयाई का दरवाज़ा खुलेगा, मर्द के लिए अलग औरत के लिए अलग। छुनस निकाह एक ख्वाहिशात का एक हलाल तरीका है, हमारी शरीयत ने रखा है, तो इंसान शैतान चाहता ही कि ये हलाल तरीक़ों को छोड़कर हराम तरीका इख्तियार कर ले, तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं तो सब्र करते रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता रहेगा, ये भी खुदा खौफ ऐसे, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए ज़रूर रास्ता निकालेंगे। अल्लाह उसके लिए क्या कुरान है ना, फटमट इनाम दी दुतना से दुनिया में अल्लाह ताला वनान च पख मे खूज खूज है ना, च कर के ओप जो बर्दाश्त कर कैसा परवाह न यह दुनिया यात में जी होर बोन, बर्दाश्त करो, थोड़ा सा सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा करो। वमन यत्तक़िल्लाह, तुम अल्लाह जो अल्लाह से डरेगा या शहादत ठीक ठीक देगा, अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ज़रूर उसके लिए रास्ता निकालेंगे। हाँ ये कुरान है, वादा है कुरान का। जो भी तकवा वाली ज़िंदगी इख्तियार करे, खुदा की कसम अल्लाह उसको आगे आगे अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको ऐसी जगहों से रिज़्क़ देता हूँ जहाँ से उसको वह में गुमान भी इशना में अशो रपियन पर नज़र, चंदस पर नज़र, तो अटीश वना कहज कथा मगर योर से नजर कमाल है उस वक्त जिस पर जेब भी खाली हो, है ना, उस वक्त कमाल है तकवा को लेना, उस वक्त कमाल है अल्लाह पर भरोसा करना। क्या गो योर छुम या चंद पर नजर हो गो खुदा इस पर भरोसा, ठीक है एक असबाब के दर्जे में है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो सही तकवा वाला रास्ता इख्तियार करेगा, चाहे मुझे फाका लगे मैं गलत पैसा नहीं कमाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी फाका लगे मुसीबतों का सामना करे, मैं हराम लुकमा ना अपने अहल वयाल को खिलाऊंगा ना खुद खाऊंगा, अल्लाह कहते हैं मैं उसको जरूर रास्ता दे के ही रहूंगा। अल्लाह खुद कहते हैं इजअल लहू मखरजा, अल्लाह जरूर उसके लिए एक निकलने का एक रास्ता देंगे। और वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और रिज़्क़ उसको ऐसी जगह से दूंगा जहां से उसको वह में गुमान भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह उसको रिज़्क़ देगा मिन हैसु, ऐसी जगह से, ला यहतसिब जहां से उसको वह में गुमान भी नहीं होगा। और वमन यतवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, फहुवा हस्बु, वह अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, वह अल्लाह उसके लिए सुभान अल्लाह। क्या भरोसे दे अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा काम बिगड़ेगा नहीं, अब अल्लाह खुद कह रहा है। तो वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो तवक्कुल करेगा भरोसा करेगा अल्लाह पर, फहुवा हस्बु, वो उसके लिए काफ़ी है, वो शख्स के लिए। और वो कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत पनी ताकत वनान इन्नल्लाह बालिगु अमरिही, और बेशक अल्लाह अपना मामला करके ही रहते हैं, तात है कि न दुनिया का हुक्मरान डल
اللہ کہتے ہیں پھر میری طاقت ہے، پھر میری خدائی ہے، جب میں کسی کام کے متعلق ارادہ میں مجھے کرنا ہے وہ ہو جائے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام کر کے ہی رہتے ہیں، اس پاس کر خدا اس پر اللہ اس کا کام کر کے ہی رکھتے ہیں۔ اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہ قانون خداوندی اللہ فرماتے اپنا قانون، کیوں؟ تحقیق، یقیناً تحقیق کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے پہلے ہی۔ سوچنا ماحول پر تیتھوئی بنان، تیتھوئی پر یور آو ہو رہا، پہلے سے ایک پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ پہلے ہی کیا کر رکھا ہے؟ مقرر کر رکھا۔ تو یہ قرآن ہے، کیا چاشنی تھی، کیا ایمان اس لذت چاہت مزہ آسان۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ قرآن ہمارے لیے باعث نجات بنا، اسے پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما، سمجھنے کی توفیق نصیب، عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یہ قرآن یا اللہ جہنم اور ہمارے درمیان ایک آڑ بنا لے، مغفرت کا سامان بنا لے، جنت میں جانے کا سبب بنا لے۔ یا اللہ ہمارے وجود اس قابل، دل و دماغ اس قابل بنا ہم ان میں قرآن سما سکیں، ہماری زبانیں اس قابل بنا کہ ہم اس قرآن کو پڑھ سکیں، ہمارے کان اس قابل بنا کہ ہم قرآن سن سکیں، ہمارے نسلوں کو قبول فرما، ہمارے اولادوں کو قبول فرما، ہمارے وجودوں کو قبول فرما۔ اللہم اغفر لکافۃ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔